کیا وجہ ہے کہ شاہ نورانی کی زیارت کو لوگ بار بار آتے ہیں؟ کسی کا یہ 7واں، کسی کا 9واں اور کسی کا 12واں چکر ہے، اور کوئی پہلی بار بھی آیا ہے۔ پہلی مرتبہ آئی ہوں، ماشاءاللہ سے یہاں کا منظر ہی ایسا نظر آ رہا ہے کہ آنے کو جی چاہے گا انسان کا۔ یہ میرا 7واں چکر ہے اور 5 دفعہ میں آئی ہوں، میں نے منت مانی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری پوری کری ہے۔ اگر آپ نے جو اللہ سے عہد کیا ہے 70 لوگوں کو کھانا کھلانے کا، 100 کو کھلانے کا، کسی عہد کو پورا کرنے کا، جس طرح آپ انسانوں سے عہد کرتے ہیں تو پورا کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ نے جب اللہ سے عہد کیا تو ایک آپ کے اوپر یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ہوتا یہ کہ جب آپ نے منت مان لی، آپ نے ایک پرومس کر دی، تو آپ کی عقیدت اس ہستی کے ساتھ جو ہے، اس عقیدت کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہو جاتی جو نہیں ہوتی، کاروبار چلنے لگتا ہے، گھر میں ناچاکی ختم ہو جاتی ہے، بیماری چلی جاتی ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اس منت کو پورا کرتے ہیں۔ تو منت ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو، بدعت نہ ہو کسی قسم کی۔ منت بائی سیلف از ناٹ بدعت، کیونکہ مانگ آپ اللہ سے رہے۔ دیکھیں نا، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر وسیلہ ہوتا ہے، تو یہ منت بھی ایک وسیلہ ہے اللہ سے مانگنے کی، بس ایسے۔ اس علاقے میں بجلی اور گیس ناپید ہے، زائرین سارے انتظامات کر کے آتے ہیں۔ ابھی تو آئے اور بستر وغیرہ مل جائیں گے، سب کچھ ہے، کناتے وغیرہ دریاں سب ہیں۔ ایک طرف شاہ نورانی سے عقیدت اور دوسری طرف لاہوت میں موجود پراسرار چیزیں۔ گوکل دیو کون ہے؟ غار میں اونٹنی کیا کر رہی ہے؟ کیا واقعی لاہوت جنوں اور پریوں کا مسکن ہے؟ شام 5 بجے کے بعد کسی شخص کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا واقعی اندھیرا پھیلتے ہی پتھروں میں قدرتی طور پر بنے خونخوار جانور اور جنات زندہ ہو جاتے ہیں؟ اسی تجسس کے تحت ہم سفر پر آگے بڑھے اور پہنچے قدم گاہ پر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کے پاؤں کا نشان ہے اور اس پر ساتھ ہی نام علی بھی نقش ہے۔ نام اس میں لکھا ہوا ہے قدرتی۔ کیسے بتا دیں انگلی سے کر کے؟ اور روایت کے مطابق اس دوسرے پتھر پر حضرت علی کی اونٹنی کے پاؤں کا نشان بھی ثبت ہے۔ یہ مولا علی کے اونٹنی کا قدم ہے جو لاہور کے اندر سے لایا گیا ہے۔ یہیں پر ایک ایسا پتھر بھی ملتا ہے جو روایت کے مطابق کھاٹ جبل سے لایا گیا ہے، جس پر قدرتی طور پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور یہیں پر حضرت رحیم علی شاہ بخاری کی درگاہ ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اس مقام پر جسے پریوں کا باغ کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ یہاں ایک ظالم دیو رہتا تھا جس کا نام گوکل تھا۔ جب شاہ نورانی اس علاقے میں آئے تو گوکل ان کے مقابلے پر آ گیا، جن کا سراپا نور دیکھ کر گوکل فرار ہو گیا، اسی لیے انہیں نورانی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یہاں اس علاقے اس خطے میں سوائے دیو جن پرستان اس مخلوق کے علاوہ اور بندے کی کوئی ذات نہیں تھی، سمجھے نا؟ اس دور میں بابا کی آمد ہوئی ہے کہ یہاں ایک گوکل نامی دیو تھا جو جس کا یہاں قبضہ تھا، اور جو بھی جن پرستان دیو تھے اس کے متی تھے، اس کے تابع تھے، ٹھیک ہے۔ بابا کی جب آمد ہوئی تو پھر
वो सब तहस नहस हो गए। गोकल नामी देव था, उसको बाबा ने कैद करवाया। जो उसके साथ साथी आए थे उनको अमर किया, बाबा ने हुक्म दिया कि उसको कैद करो। तो जब अपने सरगुरु का इन्होंने ये हाल देखा, जो देव परस्तान जिन थे तो कुछ भाग गए, कुछ और बाबा के ताबे हो गए। वहाँ से फिर गोकल देव को उसने पकड़ के मारा और जंजीरों में कैद करके उस गार के नीचे जाके बंद किया इसको। हाँ, गोकल ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, बस ये इलाका छोड़ के जा रहा हूँ। बोला तुझे मैं माफ़ नहीं करूँगा और छोड़ूंगा नहीं। एक शर्त है, इसी गार के नीचे ये जो मैं चश्मा निकालता हूँ, ये चश्मा तुम निकालते, इसकी सफाई करते रहो, तो तुम क़यामत तक जिंदा ही रहेगा। तो आज भी वो गोकल देव उस गार के नीचे कैद है। पहले हमारे बड़े कहते थे कि हर जुमे रात गोकल की यहाँ सलामी होती थी। वहाँ से निकलता था, या अली का नारा लगाता था बीच में आके, और तीसरा नारा आके चौखट पे लगाता था। ज़ियारत करके फिर यह वापस चला जाता था। दरगाह शाह नूरानी अब आने ही वाली है। अब हम दरगाह शाह नूरानी पहुंच चुके हैं। नूरानी नूर है, हर बदा दूर है, नूरानी नूर है, आदर है दूर है, हर बदा दूर है, सब्र वाले के पास पास में सब्रों से दूर है, नूरानी नूर है, हर बदा। ज़ायरीन की आंखों में अकीदत के दरिया बहते नजर आते हैं। मुझ को सच्चा साथ को तजीम, या अल्लाह या मोहम्मद या। शाह नूरानी का उर्स माह रमजान की 9 से 11 तारीख तक होता है। लेकिन ज़ायरीन की आमद का सिलसिला साल भर जारी रहता है। शाह नूरानी के मकाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर भी हाजिरी के लिए आया करते थे। 4 बुजुर्ग हैं, वली हैं, वो 4 यार कहलाते हैं। इनका ताल्लुक पंजाब से है। तो कलंदर शहबाज सिंध में, कलंदर लाल शहबाज और शेख बाउल जकरिया, शेख बाउल मुल्तानी जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, और बाबा फरीद शकरगंज और शेर शाह सुर्ख बुखारी उच्च शरीफ वाले, ये चारों उस दौर में हाल हयात में बाबा के यहाँ आए थे। ये तो किसी को इल्म नहीं है, जब मौला अली शेर खुदा ने आखिरी वसीयत की थी कि मेरा जसद मुबारक ऊँटनी पे जनाजे नमाज पढ़ा के रवाना कर देना, ये तो सबको इल्म है। उसके बाद का किसी को इल्म नहीं है कि वो ऊँटनी कहाँ चली गई। यही हकीकत है। और ऊँटनी इस इलाके में पाई भी गई और वो अभी तक लाहौर के अंदर मौजूद है। जो अल्लाह के वलियों ने, जैसे सिंध में बहुत बड़ी हस्ती है कलंदर लाल शहबाज, उसने जाहिर किया इस राज को। दूसरी हस्ती है शाह अब्दुल लतीफ भेटाई, बाबा फरीद है, जिन्होंने ये वाज़े रास्ते दिखाए अपने फ़कीरों को, दरवेशों को, जिस वजह से ये रूहानी सिलसिले शुरू हैं यहाँ इस वादी में। ये एक अजीब सरशारी और सरमस्ती की दुनिया है। यहाँ झूठ और खोट नहीं है। यहाँ न दुनिया की हिर्स व तमा है, न फितना व फसाद। बस अल्लाह की मोहब्बत का नूर है जिसने माहौल को मुनव्वर कर रखा है। यहाँ अकीदतमंद आरिफाना कलाम गाते हैं और धमाल डालते हैं। दुनिया के झमेलों से दूर एक बेफिक्री की दुनिया,
कितना सुरूर है यहाँ। मैं बाबा जी की ज़ियारत करने जा रही हूँ और वहाँ जो कुछ है वहाँ की ज़ियारत करूँगी इंशाल्लाह। वहाँ से मुझे काफ़ी फैज़ हुआ है। आज मैं अपने कदमों से माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल के आई हूँ। जबकि मेरी मौत की हिचकियाँ लगी हुई थी तो मेरे को अल्लाह ने बचाया। दवाइयों वगैरह से किसी चीज़ से मुझे आराम नहीं आया, मगर जब सरकारों ने बुलाया तो अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। दरगाह के साथ ही एक छोटा सा बाजार भी है जहां मजार पर चढ़ाने के लिए चादरें, मेवाजात, कड़े, अंगूठियां और पत्थर के नगीने मिलते हैं। फजा में चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू रची बसी है। दुनिया की फिक्रों से बेनियाज लोग पड़ाव डाले हुए थे। लकड़ियों से आग जलाकर खाना पका रहे थे। ये दरगाह शहर में होने वाले फसादात और अमन व अमान की खराब सूरत हाल से तंग लोगों के लिए एक गोशाए आफियत भी है। कराची की हालत तुम्हारे सामने, अभी भी हम निकल रहे थे तो हमारा सारा इलाका बिल्कुल बंद हो गया और तकरीबन काफ़ी लोग तो नहीं आए हमारे साथ। हजरत शाह नूरानी ने गोकल को कैद करके उसे मुजाफात में पानी पहुंचाने के काम पर लगा दिया। यूं सदियों से इस चश्मे से परियों के बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। ये एक परियों का बगीचा कहलाता था, ये पूरा बंद इलाका था। तो वहाँ जब गोकल को पता पड़ा कि कोई शख्स आ रहा है तो गोकल देव चंद कदम इस बगीचे से बाहर निकल के गया। देखा कि एक घोड़े पे सवार कोई शख्स आ रहा है तो इसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ इंसानों की जुर्रत नहीं है। कहा कि मैं आगे आ रहा हूँ और मैं आगे जाने की सोच रहा हूँ। तो उनकी आपस में बातों में लड़ाई हो गई। फिर बाबा ने इसको पकड़ कर गोकल देव को जमीन पे मारा। वहाँ जब इनकी हल्का कलामी हुई तो उसने अपना दांतन मुबारक बाबा के जो हाथ में था मुंह में वो निकाल के उस पत्थर पे मारा। पत्थर दो टुकड़ा हो गया, ठीक है नहीं, आधा जमीन में गया, अभी भी आधा वो जाहिर है। जिला लसबेला के 1907 के गजट में बयान किया गया है कि सन 1495 में शाह नूरानी यहाँ तशरीफ लाए तो उस वक्त ये बाग गोकल नामी एक अमीर आदमी की मिल्कियत था। सन 1767 में ठट्ठा में लिखी जाने वाली किताब तोहफतुल कराम में बयान किया गया है कि शाह नूरानी ने गोकल सेठ से ये इलाका लेकर इस जमीन को अपना मस्कन बनाया।